children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, division. Division is a method of sharing or dividing into groups equally. This can be done by various methods. Let's solve 27 divided by 3 by different methods. Division का मतलब होता है sharing या फिर divide करना groups में equally. अब 27 को 3 से हमें divide करना है. इसे हम किस तरह से divide कर सकते हैं? By 3 different methods. By equal sharing. अब देखिए 27 को आप 3 equal parts में कर दीजिए. कैसे होगा? 9 + 9 + 9 is equals to 27. By repeated subtraction. अब repeated subtraction करना है. 27 को आपने 3 से डिवाइड करना है, तो 27 में से 3 आप माइनस करते रहेंगे. कब तक? जब तक कि आपको आंसर 0 ना मिल जाए. एंड थर्ड, ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया था ऐसे ही करेंगे. आपने 3 नंबर्स को जंप करना है, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 9. सो आपका 9 जो है, 9 को हम बोलेंगे quotient, 3 आपका divisor and 27 dividend. Hence we can say that 27 divided by 3 is equals to 9. तो हम कह सकते हैं कि 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 9. जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो आपका डिविडेंड होता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइजर, एंड जो आपका आंसर होता है वो आपका होता है क्वोशिएंट. चिल्ड्रन, आपको डिवीजन से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. While dividing 56 by 7, we try to find out how many times 7 goes into 56. We make use of the multiplication table of 7 for dividing 56 by 7. We know that 7 into 8 is equals to 56. Therefore, 56 divided by 7 is equals to 8. Similarly, 7 into 8 is equals to 56. Therefore, 56 divided by 8 is equals to 7. Thus, we get two division facts. 7 into 8 is equals to 56, which is called multiplication fact. 56 divided by 7 is equals to 8, division fact, and 56 divided by 8 is equals to 7, division fact. अब डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या रिलेशन है? जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, 7 into 8 आपका 56 होता है. ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. इसको हम 2 डिवीजन फैक्ट में लिख सकते हैं. जैसे कि 56 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से, योर आंसर विल बी 8. और अगर आप 56 को डिवाइड करेंगे 8 से, देन योर आंसर विल बी 7. So, it can be concluded that division is the inverse or opposite of multiplication. For every multiplication fact, we get 2 division facts. तो यहाँ से आप क्या conclusion निकलता है कि division आपका multiplication का opposite है, और हर multiplication fact के लिए आपको 2 division facts मिलते हैं. ओके, नीचे आपको exercise दी गई है, इसकी practice आप खुद से करेंगे. How to divide? Step 1. Arrange the numbers in division form. Divide. First divide the thousands, then the hundreds, then the tens, and then the ones. कैसे डिवाइड करना है? पहले डिवीजन फॉर्म में आप अरेंज कीजिए, फिर 1000 को डिवाइड करना है, फिर हंड्रेड्स को, टेंस, एंड देन वंस को. डिविजन बाय अ 1 digit number without remainder. Divide 846 by 2. Arrange the numbers in division form. देखिए 846 को सबसे पहले आप अरेंज करेंगे एंड आपको 2 से डिवाइड करना है. एक्सप्लेनेशन. डिवाइड 800s by 2. 2 into 4 is equals to 8. Write 4 in hundreds. Place of the quotient and the product 8 below 8 and subtract 8 minus 8 is equals to 0. Bring down 4 tens as shown and divide 4 tens by 2. 2 into 2 is equals to 4. Write 2 in tens place of the quotient and the product 4 below 4 and subtract 4 minus 4 is equals to 0. Bring down by 6 ones as shown and divide 6 ones by 2. 2 into 3 is equals to 6. Write 3 in ones place of the quotient and the product 6 below 6 and subtract 6 minus 6 is equals to 0. आइए देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले आपकी 100 प्लेस पे जो डिजिट है आप करेंगे
2 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है? 2 4s are 8, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, 2 4s are 8। जब आप 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 4, 2 2s are 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। देन अब 6 एंड कीप इन योर माइंड डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे 6 उतारेंगे, 2 3s are 6 एंड माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 0। ओके, सो 0 आपका क्या है? रिमाइंडर। ओके, एंड आपका जो आंसर है 423, दिस इज योर क्वोशंट। ओके, एग्जाम्पल 2, डिवाइड 7368 बाई 8। इसे भी सेम प्रोसेस से करना है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ओके चिल्ड्रन, डिवीजन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है जो आपने खुद करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग, एंटर इन द क्विज एंड कम आउट फ्रॉम देयर यूजिंग द नंबर्स डिवाइडेड बाय 9। यू कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, आपको इस क्विज के अंदर एंटर करना है और बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? आप जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं उन नंबर्स को यूज़ करते हुए आप बाहर आएंगे और आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो इसे आप खुद करेंगे। डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। अभी जो हमने डिवीजन किया था उसमें 0 रिमाइंडर था और अब रिमाइंडर के साथ। एग्जाम्पल 1, डिवाइड 478 बाय 5। सोल्यूशन, अरेंज द नंबर्स इन डिवीजन फॉर्म। सबसे पहले आप इसे अरेंज कर लीजिए। 478 को डिवाइड करना है आपको 5 से। Explanation, divide 400s by 5, but 4 is less than 5, so we will divide 47 tens by 5. 5 into 9 is equals to 45. Write 9 in tens place of the quotient and the product 45 below 47 and subtract 47 minus 45 is equals to 2. Bring down 8 ones next to the 2 as shown and divide 28 ones by 5. 5 into 5 is equals to 25. Write 5 in ones place of the quotient and the product 25 below 28 and subtract 28 minus 25 is equals to 3. Here 3 is remainder. चलिए देखते हैं कैसे हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप 4 लेंगे, बट 4 5 से छोटा है तो हम 2 डिजिट को एक साथ लेंगे। हम लेंगे 47। अब 47 4 5 की टेबल में तो नहीं आता है, हम उसकी बिल्कुल जस्ट पास जो नंबर होगा उसे हम लेंगे। तो 5 9s are 45। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, हमेशा हम छोटा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर नहीं लेना है क्योंकि हमें माइनस करना है ना। तो अब 47 में से आप 45 माइनस कीजिए। 7 minus 5 2, 4 minus 4 0। अब आप ऊपर से नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे जो है आपकी 8। सो अब आपके पास नंबर है 28। 5 5s are 25। अब आप इसे माइनस कीजिए। 8 minus 5 is 3 एंड 2 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो 3 आपका रिमाइंडर है एंड 95 इज योर क्वोशंट। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड 8696 बाय 7। ये भी आपको सेम उसी मेथड से करना है जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल 1 दिया है। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Division by a 2-digit number. Divide 519 by 12. Arrange the numbers in division form. पहले हमने 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया था, अब हम 2 डिजिट नंबर से करेंगे। हम 519 को 12 से डिवाइड करेंगे एंड इसके लिए आपको 20 तक टेबल्स मेमोराइज करने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन, डिवाइड 51 by 12. 12 into 4 is equals to 48. Write 4 in tens place of the quotient and the product 48 below 51 and subtract 51 minus 48 is equals to 3. Bring down 9 ones next to the 3 as shown and divide 39 ones by 12. 12 into 3 is equals to 36. Write 3 in ones place of the quotient and the product 36 below 39 and subtract 39 minus 36 is equals to 3. Here 3 is remainder. देखिए, अब 12 से छोटा है तो हम 2 डिजिट को इस साथ में लेंगे। 51। अब 51 12 की टेबल में कहाँ पे? उसके बिल्कुल पास में आता है। 12 into 4 is equals to 48. 12 4s are 48। अगर आपको टेबल आती है तो आपको बहुत इजीली से कर पाएंगे। अब आप इसे माइनस कीजिए।
1 माइनस 8 नहीं हो सकता है, आप कैरी ले लीजिए। 11 माइनस 8 3 एंड अब आप ऊपर से एक डिजिट उतारेंगे 9। अब 12 की टेबल में आप देखेंगे 39 किसके आसपास आता है, 12 3s आर 36। 9 माइनस 6 3 एंड 3 माइनस 3 0, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3 इज योर रिमाइंडर एंड 43 इज योर क्वोशंट। Okay children, example 2, divide 6642 by 17। ये भी सेम है, जैसे आपने 12 से डिवाइड किया है ऐसे ही आप 17 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। Division by 10, 100 and 1000. When we divide a 2-digit number by 10, the digit at 10's place is the quotient and the digit at 1's place is the remainder. For example, 25 divided by 10, quotient is equals to 2, remainder is equals to 5. 56 divided by 10, quotient is equals to 5, remainder is 6. देखिए किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, बहुत इजी है ये, तो आपको क्या करना है, जो 10th प्लेस पे डिजिट है 1's 10th, जो 10th प्लेस पे आपके डिजिट है वो आपका क्वोशंट एंड जो 1's प्लेस पे है वो आपका रिमाइंडर। When we divide a 3-digit number by 100, the digit at 100's place is the quotient and the digits at 10's and 1's places are the remainder. For example, 476 divided by 100, quotient is equals to 4, remainder is equals to 76. किसी भी नंबर को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं, किसी 3-digit नंबर को, तो देखिए आपका क्वोशंट होगा जो 100's प्लेस पे नंबर है एंड रिमाइंडर होगा जो 10's और 1's प्लेस पे नंबर है। When we divide a 4-digit number by 10, the digits at thousands, hundreds and tens places are the quotient and the digits at 1's place is the remainder. For example, 1125 divided by 10, quotient is equals to 112 and remainder is equals to 5. जब आप किसी 4-digit number को 10 से divide करते हैं, for example 1125 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट होगा जो आपके thousands, hundreds and tens प्लेस पे, यानी कि 112 एंड योर रिमाइंडर विल बी 5 जो 1's प्लेस पे होगा। When we divide a 4-digit number by 100, the digits at thousands and 100 places are the quotient and the digits at tens and 1's places are the remainder. For example, 5675 divided by 100, quotient is equals to 56, remainder is equals to 75. किसी भी 4-digit नंबर को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशंट होगा जो thousands and 100 प्लेस पे, यानी कि 56 एंड आपका रिमाइंडर होगा जो आपके टेंस और 1's प्लेस पे है, यानी कि 75। और ये सारे एग्जाम्पल आपके सेम है। When we divide a 4-digit number by 1000, the digit at thousands place is the quotient and the digits at hundreds, tens and 1's places are the remainder. For example, 7215 divided by 1000. जब आप 4-digit नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशंट होगा जो आपका 1000 प्लेस पे है, यानी कि 7, और आपका रिमाइंडर होगा जो आपके 100, टेंस एंड 1's प्लेस पे, यानी कि 215। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। प्रॉपर्टी 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। 18 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 18, 212 divided by 1 is equals to 212. 5627 divided by 1 is equals to 5627. What do we observe? We observe that when a non-zero number is divided by 1, the quotient is the number itself. देखिए इन ये नंबर्स क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, हम इन नंबर्स को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी नॉन जीरो नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट वो नंबर खुद ही होगा। Property 2, observe the following. 36 divided by 36 is equals to 1. 521 divided by 521 is equals to 1. 7324 divided by 7324 is equals to 1. What do we observe? We observe that when a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1.
जब किसी नॉन ज़ीरो नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो आपका कोशेंट होगा 1। जैसे कि 36 को 36 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। प्रॉपर्टी 3, ऑब्जर्व द फॉलोइंग. 0 डिवाइडेड बाय 42 इज इक्वल्स टू 0. 0 डिवाइडेड बाय 356 इज इक्वल्स टू 0. 0 divided by 4856 is equals to 0. What do we observe? We observe that when 0 is divided by any non-zero number, the quotient is 0. यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप 0 को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमेशा ही 0 होगा. प्रॉपर्टी 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग. 54 divided by 0 is equals to what? Let's try to divide 54 by 0 using repeated subtraction. 54 minus 0 is equals to 54. 54 minus 0 is equals to 54. 54 minus 0 is equals to 54. And so on. What do we observe? We observe that when we subtract 0 from any non-zero number, we get the same number. So we cannot divide any number by 0. देखिए 54 को आप 4 0 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या होगा? हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता. ओके चिल्ड्रन, आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल, 500 players are divided equally into 6 teams. How many players are there in each team? How many are left over? 500 players है जिनको 6 टीम्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो कितने प्लेयर्स हर टीम में आएंगे एंड कितने बच जाएंगे? Solution, total number of players is equals to 500, number of teams is equals to 6. Total number of players आपके 500 है and teams है 6. इसका मतलब 500 को 6 से डिवाइड करना है. On dividend 500 by 6 we get 83 as the quotient and 2 as a remainder. So there are 83 players in each team and 2 players are left over. देखिए 500 players हैं, 6 teams हैं आपके पास. So you have to divide 500 by 6. 6 8s are 48. जब आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2 and 0. Then 6 3s are 18 and माइनस करके बचाएगा 2. यानी कि 2 प्लेयर्स आपके बच जाएंगे एंड 6 टीम में यानी हर टीम में आपकी 83 प्लेयर्स होंगे. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.